प्रोफेसर डीपी सिंह, वर्तमान में शिक्षा सलाहकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में शिक्षा के लिए और तकनीकी शिक्षा और सभी तरह की शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं। पहले फॉर्मर चेयरमैन यूजीसी एंड डायरेक्टर नैक। KV Raju, Economic Advisor to the Chief Minister. Avnish Awasthi, Advisor to Chief Minister. Namaskar, I am Manoj Kumar Singh, Infrastructure and Industrial Development Commissioner. Namaskar, I am Shanmuga Sundaram, Department of Vocational Education and Skill Development, posted as Principal Secretary, Pramukh Sachiv. Namaskar, I am Alok Kumar, Principal Secretary Planning and Nodal Officer for $1 trillion mission. Namaskar, I am Amit Singh, I am Secretary in the Chief Minister's Office. नमस्कार, I am Abhishek Prakash, Secretary Industries and CU Industry. नमस्कार, मेरा नाम स्वाति अग्रवाल है, मैं डेलोइट में पार्टनर हूं और हम यूपी सरकार के साथ $1 ट्रिलियन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। Particularly, he is focusing on health and education. It's going to the model state. So once upon a time, we have Nalanda and Takshila University, where we had students from 25 countries. Now we have a program called under our Prime Minister Study in India. So we won't have more foreign students. We have the Indian system is a best education system, but we want more marketing abroad. So as EPSI, we would like to inform our state, we can conduct faculty conclave to upgrade the faculties, then leadership programs for the principals and vice chancellors, and best practices. We have the best universities sitting here in the NIRF ranking. We can put together all our best practices and give it here. And we can take our government institution heads like principal and vice chancellors to all our universities like an education tour and see us and get the best practices from our institutions. So someone talk about this world ranking like US ranking and Times ranking. So everyone wants foreign students and foreign faculty. Already we are working on that. We are ready to help UP government and institution getting foreign students and foreign faculty. Thank you, sir. Thank you, sir. Say a few words. Sir, Honorable Chief Minister Ji and all the members of the cabinet and the officials of the UP government. Sir, I would like to not take much of your time, but I would like to concentrate on 2 or 3 aspects. The first aspect would be that we do know that now UP is becoming a hub for higher education. It was the Karnataka which was the hub for higher education about 40 years back, and today hub is, I think it is shifted to north, and UP is becoming the hub of higher education. So we would not like to be left out. Speaking to me of my personal as an institution which has almost 27 institutions under our group, and we have just celebrated the Diamond Jubilee. We have been established almost 60 years. So I would like to personally say that we are very, very keen to look at UP as one of the destinations, and how we go about because of the new education policy that is coming. So we are looking at it on which line or which pathway that we should take. That is number 1. Number 2, I am also the chairman of the EPSI and also the chairman of the Karnataka University or all the colleges association, and the chancellor of our own group. Sir, we have started one scheme which I'd like to share with you. That is Comet Care, which has been done for the first time in the country by an association of private colleges. We have 150 engineering colleges. We have brought in this scheme of educating every one of the skill development, higher skill. I'm not talking of the vocational skill, but higher skill for both engineering and postgraduates.
virtual lab, and for all the engineering students throughout the state. So we have made 8 hubs throughout the state, and we run our these hubs by our association without any help of the government. It's a spontaneous that we want to be a partners in this development of making every student employable, making them to be self-reliant, making them to be the confidence building. Because today we saw out of the 1,20,000 students passing out in our state, only about 20,000 students were employable, just about 10%. And there's nothing great about when we talk about 14 lakhs people coming out of India and about 1,20,000. It's almost the same. So we have an unemployed youths which are sitting there, which is scary for all of us. So this is the first initiative that it has been taken. We are prepared to come to UP and create this, because you have almost about 350 engineering colleges, and you have a number of the state-run universities and center-run universities. I think this could be a very good idea. UPSI and Comet Care and the government of UP can all join together. We become partners. We want to be partners of the development. Giving skill is going to be the most dominant part for higher education. And outcome-based is also one of the reasons. Once we do this, I think we can go forward. We have set up a complete organization. I would like you to come and see all the hubs. It is spread all over the state of Karnataka, and every college has been affiliated to it. We are just the boys are paying about 2,000 rupees, and they get these skills. So this is the second proposal that I would like to give, because it will help our students in larger measure. Thank you, sir. I think I gave a hint that I will. Thank you so much, sir. We are looking at it very, very positively, because this is my first reaction. And this, see, I'm telling you very frankly, we have never gone out of Karnataka. First time we are looking at it. It was shook me when I came and landed, because the first visit of my life coming to Lucknow, and I did not expect that this is what is going to be. It is something astonishing. I can't tell you in my words, sir. Pranams to all of you. Thank you. मैं अमित भल्ला जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे मौका दिया बात करने के लिए, जहाँ पे हम अपना पक्ष रख सकते हैं और अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं। एज मानव रचना इंस्टीट्यूशंस हमारे को यूपी में काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारा एक नोएडा में स्कूल है, हमारा एक लखनऊ में भी जॉइंट वेंचर स्कूल है। सो पिछले कई सालों में हमने उत्तर प्रदेश में जो प्रोग्रेस है उसको एक्सपीरियंस किया है। जैसे जयराम जी ने कहा, उन्होंने दूर से देखा, मैं इस चीज़ को एक्नॉलेज करता हूँ कि हमने वो वर्किंग यहाँ पे एक्सपीरियंस करी है, एंड वी हैव सीन ग्रोथ इन ऑल आवर एरियाज। और जब हम एजुकेशन प्रमोशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात करें सर, तो आज जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, मेरे ख्याल हम अलग अलग स्टेट को आज रिप्रेजेंट करते हैं, और सबका अपना अपना कंट्रीब्यूशन है हर स्टेट में। ईपीएसआई की जो एक यूनिक फीचर है कि हम सारे आपस में कॉम्पिटिटर्स नहीं हैं, हम सारे कोलैबोरेटर्स हैं। सो हम सब लोग मिल के पूरे सेक्टर की तरफ काम करते हैं। सो अगर आप किसी भी स्टेट को आज पिक करें, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान है, तेलंगाना है, कर्नाटका है, तो हर एक संस्था का उस स्टेट की डेवलपमेंट में, उस स्टेट के साथ चलने में, समाज की डेवलपमेंट में, स्किल डेवलपमेंट में सबका योगदान है। तो हम ऐसा ही एक सपना यहाँ लेके आए हैं कि आज जब हम सब लोग यहाँ पहुंचे हैं, तो एक छोटा सा डेलीगेशन है, हम 8,000 लोगों की मेंबरशिप है ईपीएसआई में, एंड आई एम श्योर हमारे एक्सपीरियंसेस के बाद और भी बहुत सारे हमारे सदस्य ऐसे हैं जो अलग अलग स्टेट में अपने अपने एजुकेशन सेक्टर में लीडर्स हैं, वो भी आने वाले समय में यूपी के साथ मिलके कुछ काम करना चाहते हैं, और हर एरिया में हम आपके साथ जुड़ के चलना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सपीरियंस तो आप माननीय मुख्यमंत्री साहब and other Mantrigan and Adhikarigan,
मैं चंद्रम शिवाजी वाइस चांसलर का रूप में इस सविता यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर का रूप में यहाँ पे उपस्थित हूँ। I have attended the last UP Invest program, and it was very widely canvassed, and we happened to meet your Honorable Minister Suresh Kannaji in Chennai through the road show. They have all come, all the secretaries and all other people have come, and then we signed the intent of letter of intent there, then and there itself. And from there onwards, I think we have been continuously in touch with senior officials like Mr. Alok Kumar, Principal Secretary to Medical Education, and all his team members. They have been helping us for last 6-7 months. Now we actually plan to invest heavily, about 3,000 to 4,000 crores of rupees in and around Noida, and alternatively they have been suggesting some other sites also. In Noida, the limitation is only for the medical education. They want to allot that 20 acres of land only. But then we are actually seeing in a very big vision of converting that medical university into the full-fledged multidisciplinary university. That's why we have already sent our DPR requesting about 250 acres of land in and around Noida or any other place which is convenient to your government, sir. So we have actually come here. Thank you so much for all the officials and honorable ministers and chief minister for inviting us today. Thank you, sir. We can take one more person. One more person. Honorable Chief Minister, sir, and all the distinguished guests present here. I am from the C.V. Raman Global University, Odisha. I am the founder president of the university. It's a 25 years old organization, and we are basically into technical education, mostly in engineering. Recently, I've started the medical education, and our strength is we have incorporated skills into our higher technical educations. Sir, in last WorldSkill, we won the first gold medal for the India in WorldSkill competition, which was held in Russia. Then we won another 2 medals for India when the last WorldSkill, which was held in Germany. And we work very closely with industries. In our campus, we have almost 26 international companies. They have set up their technology labs, and we are again working with 2 more big companies, those who are investing to set up incubations and technology lab for employable skills. And we have extended partnership with the government of Jharkhand to set up a university in Kodroma there, which with higher technical education, integrating skills into that. And we hope that we'll get, little bit of cooperation from your ministry, sir. We would like to also have, such university which will be incorporated with skills and will offer high technical education. And we are the first university in our state to implement NEP, integrating skills into the curriculum. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So we are just short a little time, so we'll just take a minute. Namaskar. I just want to add that the state of Kerala has given the maximum number of best nurses and allied health workers throughout the nation and internationally. So there are a lot of hospitals in the state of UP. We would like to have a public-private participation with the government of Uttar Pradesh to train the nurses. We are short of nurses and allied health workers, and even the skill development in the field of medical education. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। श्रद्धेय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उपस्थित आप सभी विद्वज्जन, हमारे अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल माननीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत परिवर्तन आया है। शिक्षा का स्तर भी काफी आगे आया है और उसमें विस्तार भी बहुत हुआ है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं चंद बातें बताऊं तो पहले हमने इस समय
3 विश्वविद्यालय नए निर्माणाधीन है, राजकीय विश्वविद्यालय, और 3 नए की तैयारी है। निजी विश्वविद्यालयों को इंट्रोड्यूस किया गया है। लगभग 5 विश्वविद्यालयों को, निजी विश्वविद्यालयों को तो LOP मिल चुकी है और लगभग 6 को LOI मिल चुकी है। आगे भी इस पंक्ति में, इस कतार में और भी नए विश्वविद्यालय आ रहे हैं जिनको स्कोप दिख रहा है उत्तर प्रदेश में। और चूंकि उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का एक प्रदेश है, तो यहाँ संभावनाएं भी हैं और यहाँ की शिक्षा में उच्च स्तर पर आएगी और एक हब बनेगा तो पूरे देश का भी विकास होगा और देश की युवा शक्ति भी आगे बढ़ेगी। पिछले दिनों MOU भी हुए इन्वेस्टर्स में। अब आप लोग जुड़े हैं हमसे। विस्तार में तो बहुत सी बातें कहनी है, लेकिन संक्षिप्त में इशारा मिला था। तो आप लोग जुड़े हैं, इससे सोने में सुहागा हो जाएगा। कुछ विदेशी यूनिवर्सिटीज भी हमसे जुड़ रही हैं, हमारे देश के भी यूनिवर्सिटीज आप सब जुड़ेंगे, तो सहयोग से मिलकर कुछ आदान प्रदान होगा। आपसे हमको कुछ सीखने को मिलेगा और उत्तर प्रदेश एक नया हब बनेगा। हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। माननीय योगी जी हम सबको प्रेरणा देते रहते हैं, तो आप इस सरकार की तरफ से निश्चिंत रहें कि आप लोगों को अवसर प्रदान किया जाएगा। थैंक यू सो मच सर। सर, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। देश के मध्य और दक्षिण क्षेत्र के प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलाधिपति, चेयरमैन, CEO, वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर के आज के इस समिट में मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, IIDC श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रदेश सरकार में सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे श्री अवनीश अवस्थी जी, प्रोफेसर DP सिंह जी, श्री KB राजू जी, प्रदेश सरकार के हमारे सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण, मैं आप सभी देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों और संस्थानों के जो कुलाधिपति, उपकुलपति, चेयरमैन, CEO और प्रो वाइस चांसलर आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं देश के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आप सबने उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को समझने और जानने की एक नई जिज्ञासा यहाँ पर व्यक्त की है। आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और 25 करोड़ की आबादी वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है। प्राचीन काल से ही उत्तर प्रदेश भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रतिनिधित्व देता रहा है और देश की न केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व किया है, बल्कि भारत की शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी उत्तर प्रदेश रहा है। काशी आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। दुनिया के सबसे प्राचीन नगरियों में काशी और अयोध्या की गिनती होती है। मथुरा, वृंदावन आज से लगभग 10,000 वर्ष पुराना उसका इतिहास हम सबके सामने है। कालांतर में इसके समानांतर
अन्य केंद्र भी विकसित हुए। महाभारत के ऐतिहासिक महाकाव्य की रचना और उसकी पृष्ठभूमि से जुड़ा हुआ हस्तिनापुर, यह भी उत्तर प्रदेश में ही है। प्रयागराज, जिसे संगम नगरी के रूप में हम जानते हैं, और कुंभ की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत दुनिया के सबसे बड़े आयोजन के रूप में, जो मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में यूनेस्को ने जिसे मान्यता दी है, वह प्रयागराज भी उत्तर प्रदेश में है। स्वाभाविक रूप से इतनी समृद्ध परंपरा में एक समय ऐसा भी आया जब लगभग शिक्षा के प्रति लोगों से कहीं न कहीं किन्हीं कारणों से एक विमुखता जो देखने को मिली थी, वह पुनः आज प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर फिर से अपने पुरातन गौरव को स्थापित करने के जो भाव पैदा हुए हैं, वह एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आपने भी यहाँ उत्तर प्रदेश के बारे में एक छोटी सी जो वीडियो क्लिप्स आपको यहाँ पर दिखाई गई थी, इसके माध्यम से भी आपने देखा है कि राज्य में हमारे पास 75 जनपद हैं, 18 कमिश्नरी हैं, जिसमें हमारे वर्तमान में 22 राज्य विश्वविद्यालय जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित हैं, 3 निर्माणाधीन हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर 36 निजी विश्वविद्यालय भी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय के साथ साथ 2 एम्स, 2 IIT, IIM, ये सभी उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। राज्य सरकार ने 2021 में निजी विश्वविद्यालय के लिए एक एक्ट यहां पर लागू किया था और तेजी के साथ निजी क्षेत्र ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने की इन संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि लोगों की रुचि इस क्षेत्र में है और प्रत्येक सेक्टर के अलग अलग संस्थान निजी क्षेत्र के पहले से यूपी में हैं और नए भी स्थापित होने के लिए लोगों ने प्रस्ताव अपने भेजे हैं और राज्य सरकार बिना किसी देरी के इन कार्यक्रमों को जो मानक को पूरा कर रहे हैं उन्हें अपनी सहमति और स्वीकृति प्रदान करते हुए इन्हें स्थापित करने के लिए उचित माहौल भी दे रही है। उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर सबसे तेजी के साथ उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुआ है। पिछले 6 वर्ष में बदलते हुए उत्तर प्रदेश को आप सब ने महसूस किया होगा और 6 वर्ष के अंदर जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर आए हैं, उन्होंने यहाँ के आम जनमानस के मन में विकास के प्रति और अपनी विरासत के प्रति एक नई ऊर्जा को भी देखा होगा और इसीलिए आज आपका आगमन उत्तर प्रदेश की दिशा से और आपके एक नए निवेश के डेस्टिनेशन के रूप में, एक नए स्थल के रूप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं आप सबको आमंत्रित करूंगा कि हमारे पास राज्य स्तर पर वर्तमान में शासन के द्वारा संचालित महाविद्यालयों की, विश्वविद्यालयों की, तकनीकी संस्थानों की एक लंबी श्रृंखला है, लेकिन 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद जिस एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने की संभावना है, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश उसका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु बन सकता है। और आप सबको मैं आमंत्रित करूंगा कि हमारे बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जिन जनपदों में अभी कोई
विश्वविद्यालय किसी भी स्तर का, यानी स्टेट यूनिवर्सिटी या हमारी कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी या मेडिकल यूनिवर्सिटी या कोई भी अन्य इस प्रकार का महत्वपूर्ण उच्च शिक्षण संस्थान नहीं है। कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक हैं, हमारे पास प्रदेश के अंदर लगभग 1000 के आसपास कॉलेजेस हैं। हमारे पास 2000 के आसपास पॉलिटेक्निक और वोकेशनल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन भी हैं। लेकिन बहुत सारे जनपद ऐसे हैं जहां लोगों की तमन्ना होती है कि हमारे पास कोई एक यूनिवर्सिटी हो, कोई अच्छा ग्रुप आकर के वहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की दिशा में कुछ नया प्रयास प्रारंभ करें। आज का नौजवान इनोवेशन पर विश्वास करता है, वो देखना चाहता है देश और दुनिया में शिक्षा के क्षेत्र में जो कुछ भी परिवर्तन हो रहे हैं वो उस दिशा में अपने कैरियर को आगे बढ़ाना चाहता है। और यह एक अवसर है कि नीप उस दिशा में एक अवसर प्रदान कर सकता है, और सभी निजी क्षेत्र का हो या सरकार के द्वारा संचालित कोई संस्थान हो। आज के दिन पर प्रत्येक व्यक्ति के सामने अपने आप को साबित करने की एक चुनौती है, और न केवल व्यक्ति के सामने बल्कि संस्थानों के सामने भी। टिकेगा वही जो इस प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनेगा और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का हिस्सा बनते हुए अपने आप को साबित करेगा। यह अवसर उत्तर प्रदेश आपको देगा, और इस दिशा में मैं आपसे चाहूंगा कि हम लोग, अभी हमारी निजी विश्वविद्यालय की अपनी पॉलिसी है, लेकिन बहुत शीघ्र हम लोग इस दिशा में भी प्रयास करेंगे कि जिन क्षेत्रों में, शिक्षा के क्षेत्र में, आपने कल नीति आयोग के जो अभी ताजा रिपोर्ट देखी होंगी कि 2015-16 की तुलना में 2019-20 में उत्तर प्रदेश ने गरीबी उन्मूलन की समग्रता से अगर आप देखेंगे तो गरीबी उन्मूलन में सबसे लंबी छलांग लगाई है। एक बहुत सकारात्मक दिशा में उत्तर प्रदेश ने विकास के क्षेत्र में, केवल विकास का, आर्थिक विकास का मायना केवल आर्थिक विकास नहीं होता है, बल्कि बहुआयामी विकास के मायने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि के क्षेत्र में, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में क्या कुछ किया है। इस दिशा में जो सकारात्मक परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर, जैसे आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के दिशा में जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, देश के अंदर सबसे अच्छी छलांग उत्तर प्रदेश ने लगाई है। और अगर इन 6 वर्षों की आप देखेंगे, इन 6 वर्षों में उत्तर प्रदेश ने लगभग 5.5 करोड़ लोगों को गरीबी से मुक्त करके एक स्वस्थ दिनचर्या, जीवनचर्या को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें प्रेरित किया है। एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा पूरे देश के देने के लिए होगी है। और इस दिशा में मैं चाहूंगा कि ये बातें इस बात को बताती हैं कि लोग, जो कल नीति आयोग की रिपोर्ट भी बताती है कि शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिले हैं। मैं आज प्रातःकालीन सत्र में भी बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के एक कार्यक्रम में था। आप आश्चर्य करेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि आप लोग जिन राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं उन राज्यों की कुल आबादी से हमारे बेसिक एजुकेशन में सरकार के द्वारा संचालित जो संस्थान है उनमें जो बच्चे अध्ययन कर रहे हैं उनकी तुलना करना। 1,91,00,000 बच्चों को डीबीटी के माध्यम से आप 2300 करोड़ रुपए की राशि मैंने यूनिफॉर्म के लिए वितरित की है। बेसिक एजुकेशन में राज्य के द्वारा संचालित उन संस्थानों में बच्चे पढ़ते हैं 1,91,00,000, और प्रत्येक बच्चे के लिए यूनिफॉर्म के पैसे हम यहां से देते हैं, जिससे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हर बच्चे को और एजुकेशन में ड्रॉप आउट रेट को पूरी तरह समाप्त किया जा सके। अनुमान करिए 1,91,00,000 केवल हमारे यहां बेसिक एजुकेशन में बच्चे हैं, और वह जो सरकारी संस्थानों में अध्ययन करते हैं। माध्यमिक शिक्षा में इस वर्ष हमारे यहां 56 लाख बच्चों ने
परीक्षा में भाग लिया था। अनुमान कर सकते हैं कि कितनी संभावनाएं यूपी के अंदर हैं। और ये केवल यूपी बोर्ड की बात कर रहा हूं मैंने सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड की चर्चा भी नहीं की है। और हायर एजुकेशन में भी यहां अगर छात्रों की संख्या आप देखेंगे बहुत ज्यादा है, यानी 25 करोड़ की आबादी तो केवल उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो अन्य राज्य हैं, और बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा के कुछ क्षेत्र हैं, उत्तराखंड का है, नेपाल की तराई का पूरा क्षेत्र 500-550 किलोमीटर की सीमा नेपाल की उत्तर प्रदेश से जुड़ती है। ये सभी अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने व्यापार और अपने रोजगार के लिए उत्तर प्रदेश पे निर्भर रहते हैं। तो अपने आप में इतना बड़ा उपभोक्ता श्रम बाजार भी उत्तर प्रदेश है। इन सभी के लिए उत्तर प्रदेश में उनका आश्रित होना स्वाभाविक है। आप लखनऊ के किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हॉस्पिटल में चले जाइए, जितना उत्तर प्रदेश का नागरिक वहां होगा उतने ही आपको बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, नेपाल या अन्य राज्यों के भी मिलेंगे। और ईस्टर्न यूपी में कहीं भी आप देख लेंगे, किसी भी जनपद में आपको हर एक जनपद से और नेपाल से भी उतने ही लोग आते हुए वहां देखेंगे कि वे सभी लोग भी यहां अपनी सेवाएं लेते हैं। और हमें सेवा देने में कोई परेशानी भी नहीं है, क्योंकि राज्य के पास क्षमता है, राज्य एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ा है। पिछले 6 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को बेहतर किया है। प्रदेश के अंदर आज के दिन पर हमारी जो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हुई है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ा है। 1947 से लेकर के 2017 तक उत्तर प्रदेश में केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे। आज 45 मेडिकल कॉलेज हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, 16 पे कार्य चल रहा है। और अब हमने पीपीपी मोड पर जो जनपद हमारे छूटे हुए थे वहां पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य हम करवा रहे हैं, जिनमें 4 के साथ हमारा एमओयू संपन्न होने के बाद वहां पे मेडिकल कॉलेज की स्थापना का कार्य आगे बढ़ चुका है। शेष अन्य जनपदों में भी हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही हम लोगों का प्रयास होगा कि जो जनपद अच्छे विश्वविद्यालय के लिए उस दिशा में प्रयासरत हैं, अभी हम लोगों ने प्रदेश के ही निजी क्षेत्र के द्वारा संचालित संस्थानों को इसके लिए आकर्षित किया है कि अगर उनकी इच्छा है कि वे राज्य विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता लें, तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी को अगर राज्य को देंगे तो हम उन पर विचार करेंगे। अगर वहां उस जनपद में कोई विश्वविद्यालय नहीं है, चित्रकूट से, शाहजहांपुर से और बागपत से मुझे 3 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जहां पर हम लोग एक दिशा में आगे बढ़ना प्रारंभ किए हैं। लेकिन बहुत सारे जनपद ऐसे होंगे जहां पे निजी क्षेत्र को ही विश्वविद्यालय स्थापित करके उस दिशा में कार्य करना होगा। और शिक्षा के क्षेत्र में आपके पास एक लंबा अनुभव है, आपके इस अनुभव का लाभ उत्तर प्रदेश को प्राप्त हो, या उत्तर प्रदेश के प्रति आपका जो आत्मीय लगाव है, उस आत्मीय लगाव को ध्यान में रखते हुए आपको उत्तर प्रदेश सरकार भरपूर सहयोग करेगी और इस दिशा में आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग कुछ उन जनपदों में जो अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के पैरामीटर में अभी भी पीछे हैं, वहां पर हमें अपनी पॉलिसी में क्या संशोधन करना या वहां के लिए अलग से हमें कोई व्यवस्था बनानी होगी तो उसके लिए भी हम लोग तैयार होंगे। लेकिन जितना शिक्षा के क्षेत्र में निवेश होगा, और मेरा ये मानना है शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना हम निवेश करेंगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका देश और काल के लिए, भविष्य के लिए उसके उतने ही अच्छे सकारात्मक परिणाम भी सामने आएंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि आप सब ने उत्तर प्रदेश में रुचि ली है, उत्तर प्रदेश में आप आए हैं, क्योंकि आप में से बहुत सारे महानुभाव ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में पहली बार आए होंगे।
तो स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के बारे में आप आएंगे, जैसा आपको लखनऊ देखने को मिला है, तो लखनऊ तो खैर नवाबों की राजधानी मानी जाती थी, तो इससे भी अच्छे नगर आपको प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। और मुझे विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में एक बार आप घूमेंगे तो उत्तर प्रदेश को और नज़दीक से समझने में आपको आनंद की अनुभूति होगी और आपको सचमुच लगेगा कि यह वास्तव में भारत का हृदय स्थल है और उत्तर प्रदेश में निवेश आपका सुरक्षित भी होगा और उस निवेश के माध्यम से आपको उस क्षेत्र में आगे बढ़ने में, उस जीवन यात्रा को और यशस्वी तरीके से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मैं एक बार फिर से आप सबका यहाँ पर आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत आप लोग शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में या टेक्निकल एजुकेशन के क्षेत्र में या कृषि से संबंधित या फूड प्रोसेसिंग से संबंधित किसी भी सेक्टर में आप अगर निवेश करने के इच्छुक होंगे तो आप अवश्य इस दिशा में रुचि लें। राज्य सरकार आपको भरपूर मदद देगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir. And give a moment to the Honorable Minister.